آج کی مخصوص رات کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے تیسرا پارہ سورہ آل عمران کی، اللہ نے سورت کا نام آل عمران رکھا۔ اب بے خبر دنیا کو کیا معلوم عمران کون ہے؟ خدا گواہ دنیا کو خبر نہیں، سارا نظام ہی جناب عمران کا۔ اس آل عمران کی دیکھیں، جب قرآن بن رہا تھا نام رکھا تب جاتا ہے جب نام والا موجود ہو۔ پھر آل عمران بعد میں رکھا، عمران بھی اور آل بھی پہلے تھے۔ دیکھیں پہلے عالمین کا علم ہے کہ کب سے ہے، 14 کا علم نہیں ہے۔ یہ آل عمران اس آیت مجیدہ کی 33 نمبر آیت میں نے تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ میں دیکھیں، مجھے بولا جاتا ہے ابھی حکم ہے یہ آسان پڑھے، ورنہ میں ذرا تھوڑا گہرا پڑھے، لیکن آسان قرآن آسان نہیں ہے۔ جسے نبی نہ سمجھ سکے اسے قرآن کہتے ہیں۔ قرآن آسان بھی بہت ہے اور مشکل بھی بہت۔ اس آیت کریمہ میں خلاق دو عالم ارشاد ہو رہا ہے۔ دیکھیں اس حرف سے بات شروع ہوئی لفظوں سے نہیں، حرف جس کا کلام حرفوں سے شروع ہو، خدا جانے لفظوں میں کیا ہوگا۔ خالق ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ حصطفیٰ، اللہ فرما رہا ہے یقیناً، اے اللہ تو اللہ ہو کے یقیناً کہتا ہے۔ یقین وہ دلائے جس کے کلام میں شک ہو۔ تیرے کلام میں شک نہیں ہے تو اللہ ہو کے یقین لگانا۔ انا کے معنی یقین، خدا جانے جب اللہ یقیناً کہے تو معیار یقین کیا ہوگا۔ ہمارا یقین کہنا اور ہے، خود اللہ یقیناً کہے، اے اللہ خود تو اللہ ہو کے یقیناً کہہ رہا ہے، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں ایک زمانہ آئے گا بے یقین زیادہ ہوں۔ اللہ جانے وہ کون سا زمانہ ہے۔ بے یقینوں کو یقین دلانے کے لیے اللہ فرما رہے بے یقینوں میں یقین سے کہہ رہا ہوں۔ لیکن یقین کی ایک قسم نہیں، 3 قسمیں ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ حق الیقین پہ آ کے یقین بھی مہر لگ جاتی ہے۔ دیکھیں علم الیقین عقل سے پیدا ہوتا ہے، عین الیقین ضمیر سے پیدا ہوتا ہے۔ خوش ہو جائیں، وقت ہو رہا ہے۔ عین الیقین ضمیر سے پیدا ہوتا ہے، امام فرماتے ہیں حق الیقین امام سے پیدا ہوتا ہے۔ پھر واجب ہے توحید کے لیے جب تک وہ یقین دلانا چاہتے ہیں تو ایک امام کا رہنا واجب ہے۔ آج اگر ہے آج ہمارا 12واں ہے یا نہیں ہے یا نہیں، اور ہے بالکل موجود ہے، میرا 12واں ہے۔ جب ہے تو علی فرماتے ہیں لوگوں ہمارا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے۔ اللہ کا ہونا دلیل ہے، اللہ ان کا ہونا اس لیے الکائن قبل الکون، علی فرماتے ہیں کہ وہ ہونے سے بھی پہلے ہے۔ جملہ کہوں اگر میرا ساتھ ہے، نہج البلاغہ میں علی فرماتے ہیں وہ ہے ہم ہوئے ہیں۔ میرا 5واں 6واں امام جعفر صادق، جلدی سے بات کریں، ہر وقت آپ سنتے بیٹھے ہیں تو ساتھ ہی آپ کا صحابی داؤد ابن کثیر رکا ایک جگہ ہے، وہاں کا ہے یہ داؤد، ہر وقت امام کے ساتھ رہتا ہے۔ خدا جانے دن میں کتنی مرتبہ زیارت ہوتی ہے۔ روب امامت سے یہ اپنا چہرہ اٹھا نہیں سکتے تھے، جب امام چاہتے تھے یہ مجھے دیکھیں، پھر امام ادھر ارادہ کیا، ان کی نظر امام کے چہرے پہ جم جاتی ہے۔ یہ ساتھ بیٹھا ہے داؤد ابن کثیر، ساتھ بیٹھا، اللہ کرے وہ وقت آئے
इमाम की बज़्म में हम बैठ गए। मेरे इमाम ने इस दाऊद के दिल में डाला कि ये मुझसे सवाल करे। मालूम है कोई सवाल ऐसे होते हैं जो पहले दिलों में डाले जाते। जो ही कहा कि ये मुझसे सवाल करे तो कहता है मौला ये अभी अभी मेरे दिल में एक बात आई है। सही मुस्कुरा के फरमाते हैं पूछो ना। पूछो तो कहा ना पूछो ना, कहता मौला सवाल ये है आपका इल्म कितना है। वो बेखबर दुनिया। हाय 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 नहीं कहना चाहता, मुंह पे आई या नहीं कहना चाहता। बोला आपका इल्म कितना है। मेरे इमाम ने फरमाया दाऊद पहले अपना सवाल बढ़ाओ ताकि पता चले इमाम के इल्म की इंतहा क्या। कहता मौला सवाल मैंने बना लिया। जी क्या सवाल है। मौला समंदरों के नीचे क्या है। समंदरों की गहराई 35,400 फुट समंदर की गहराई है। इस गहराई के नीचे क्या है। समंदरों के नीचे क्या है। मेरे इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया दाऊद उनके नाम सुनना चाहता है या देखना भी चाहता नाम सुनना चाहता है या देखना भी चाहता है। कहता मौला अगर कान सुने तो भूल सकते, आँख देखे तो याद रहती है। इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया दाऊद ये मेरे इल्म की फुहार का नतीजा है। तो पैर ऊपर पड़ती है। दाऊद दाऊद मौला समंदरों के नीचे क्या है। मेरे इमाम ने फरमाया समंदर तुझ पर मेरी इताअत वाजिब है, जो कुछ छुपाया हुआ है जाहिर का। जुमला कहूँ इमाम की नजर जो पड़ी ना समंदर पर मद्दो जजर में इस्तराब पैदा हो गया। मद होता है पानी का ऊपर चढ़ना, समंदर का पानी ऊपर चढ़ता है, जजर कहते हैं नीचे होता है। जब इस्तराब आया ना दाऊद परेशान हो गया। कहने का क्यों परेशान हुआ। मौला ये अजीब मद्दो जजर, आज अजीब मद्दो नजर जजर मैंने देखी है सिर्फ आपकी नजर की वजह से। ये कहकर मेरे इमाम ने फरमाया दाऊद इस मद्दो जजर में अल्लाह की 10 हिकमतें हैं। गौर फरमाए मैं एक हिकमत फरमाया, एक हिकमत बताता हूँ। 10 हिकमतें हैं। बोला एक ही फरमाए। फरमाया जब समंदर का पानी मद में ऊपर चढ़ता है ना हम आले मोहम्मद पे दरूद भेजते है। बुलंदियां मिलती ही दरूद से हैं। मेरा पुत्र खुश हो। अल्लाह जब समंदर का पानी मद में ऊपर चढ़ता है हम आले मोहम्मद पे दरूद भेजता है। पश्तो आ गई है। अगर यही समंदर का पानी जब जजर में नीचे उतरता है हमारे दुश्मनों पे भर भर समझ आ गई है। यही पश्तो है ये सब समझ लेना। इमाम ने फरमाया समंदर जो कुछ नीचे है जाहिर कर दे। दाऊद कहता मेरे सामने से समंदर फट गया। ओए होए होए खुदा जाने उसके फटने का मेयार क्या था। मैं गया हूँ जनाब समंदर फट गया। एक सफेद पानी जो दूध से भी ज्यादा सफेद, दूध से भी ज्यादा सफेद पानी ने निकलना शुरू किया। जब दूध से ज्यादा सफेद पानी को देखा ना दाऊद ने कहता मौला ये दूध कब सफेद हुआ। तो मैं जब से हमारी विलायत का इकरार। पानी ना मिलाया करो दूध को दूध रहने दिया करो। दूध से ज्यादा सफेद, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार, शहद से ज्यादा शीरीन, जंजीरा से ज्यादा जायकेदार एक पानी ने निकलना शुरू किया। जो ही निकलना शुरू किया पानी ने जो ही निकलना शुरू किया। ताज्जुब से दाऊद कहता मौला ये पानी अल्लाह ने किन के लिए छुपाया हुआ है। फरमाया 12वें के लिए। जाके देखे 12वां वही तो रहता है।
یہ سارے سارے دے اسی چونکہ ریت وچ رہ رہے ہیں یہ سارے واجبات ہے کہ اپنے کریم دی ریت واسطے آواز بلند نعرہ بلند کریے مل کے نعرہ ہے علی سمجھ آئی یہ کن کے لیے چھپایا ہوا ہے فرمایا 12ویں کے لیے یہ کہہ کے میرے امام نے فرمایا داؤد جب 12واں آ جائے گا ظہور فرمائے گا اور خیال کرائے سی دنیا کا باقی کل پانی ختم ہو جائے گا صرف یہی پانی رہے گا آج اتنی بڑی محفل میں اتنی بڑی مجلس میں میں جملہ کہنا چاہتا ہوں سارا دنیا کا پانی ختم ہو جائے گا صرف یہی پانی رہے گا اسی پانی کو وہ پی سکے گا جس نے اس دنیا میں بلا فاصل اقرار ولایت جناب بالکل اپنے وقت کے اندر ان اللہ اصطفیٰ یقیناً میں جو یقین میں بھی کھڑا ہوگا یقیناً یقین کی عام بات نہیں ہے جہاں یقین کا کمال ختم ہوتا ہے وہیں سے اطمینان شروع ہوتا ہے خدا جانے نفس مطمئنہ کسے کہتے ہیں اللہ ان اللہ اصطفیٰ یقیناً اللہ نے چن لیا ہے استفا چن لیا ہے آدم جناب آدم جملہ جلدی سے کہہ دوں میرا خیال ماحول ٹھیک ہے پہلا چنا جا رہا ہے جناب آدم علیہ السلام ہمارا باپ جو ان کو نہیں مانتا پھر باپ کو کیوں مانتا اچھا نہیں کہنا تو ہمیں دوبارہ نہیں کہیں گے ان اللہ اصطفیٰ یقیناً اللہ نے چن لیا ہے کن کو چنا ہے آدم جناب آدم علیہ السلام کو پھر میں جملہ ضرور دلیل میں کہوں گا جناب آدم ہے معصوم معلوم ہوتا ہے اللہ کا چناؤ شروع ہی عصمت سے ہوتا ہے غیر معصوم کبھی چنا ہی نہیں جائے اللہ نے چن لیا خوش ہو اللہ نے چن لیا ہے آدم جناب آدم کو چنا نوح چناؤ بر بنائے عصمت ہوتا ہے نبوت بر بنائے عصمت ہوتی ہے عصمت بر بنائے نبوت نہیں ہوتی موٹیاں نہیں کرنی مشکل نہیں کرنی عصمت ہوتی ہے تو نبی بنتا ہے نبی بن کے معصوم نہیں ہوتا اللہ نے چن لیا ہے اس کو آدم جناب آدم کو نوحن اور جناب نوح کو کیسے نام آ رہے ہیں نوحن خدا جانے کتنا لوہا کیا پڑھا کرو نوحن نوح کے بعد چناب آل ابراہیم خدا جانے نوح کے چننے کے بعد آل کا معیار کتنا بلند ہو گیا کتنے درمیان میں نبی ہیں لیکن وہاں آل ابراہیم کو چنا معلوم ہوتا ہے ابراہیم سے آل چننا شروع ہوئی ہے آل ابراہیم کو چنا ہے آخر میں فرمایا آل عمران دنیا سمجھ جائے جہاں چناؤ کا کمال ختم ہو جائے اسے عمران کہاں سے چنا العالمین تمام عالمین میں سے یہ چنے گئے ہیں عالمین میں سے چونکہ چناؤ شروع ہو رہا ہے نا حکومت میں بھی میں بھی سنا دیتا حکومت کا چناؤ اور ہوتا ہے ایم پیز وغیرہ چنے جاتے پریشان نہیں ہونا جو بیٹھے ہیں جو بدو کے بیٹھے ہیں وہ بھی سنتے رہے اللہ کا چناؤ ان جیسا نہیں ہوتا 1,24,000 نبی 313 رسول 5 اولوالعزم رسول خاتم ایک یہ چناؤ ہے خاتم ایک دیکھیں ایک خاتم کیوں ہوا دلیل کیا ہے جب کمال بڑھتا ہے نا عدد کم ہو جاتا جانے خاتم المرسلین پر کیا کمال مکمل ہوا اللہ نے کہا اس کے بعد چننا ہی نہیں جانشین بنانا ہے اب چننا نہیں چناؤ میں سرکار خاتم المرسلین چن لیا چناؤ کس کا ہے اللہ کا
अब अल्लाह का चुनाव मैं बताता हूँ कैसे हुआ। देखिए, नबी चुने जाते हैं और साहिबानी माशाल्लाह आपकी फैसलाबाद का दर्जा पाकिस्तान में करीब नंबरों में आ नंबरों में नीचे न आने जाके की कह रहा है ख्याल करा। अब आप नबी चुने जाते हैं आलमीन में से। चुनाव में परेशान है मेरा ख्याल ना मैं देख खुदा करे तो माशाल्लाह जी नबी चुने जाते हैं आलमीन में से। 313 रसूल चुने जाते हैं नबियों में से। मेरी गल समझ के हो तो ठीक हो जाएगी। हाय हाय रसूल चुने जाते हैं नबियों में से। 313 रसूल नबियों में से चुने गए। 5 है उलुल आज़्म रसूल, 5 चुने जाएंगे 313 में से। खातम है एक। 5 कौन है? जनाब इब्राहिम, जनाब मूसा, जनाब नूह, जनाब इब्राहिम, जनाब मूसा, जनाब ईसा और हुजूर पाक। 5 है उलुल आज़्म रसूल, खातम है एक। कितनी है? खातम की लफ्ज़ी दलील है एक होना चाहिए जी। वो जात में एक है, ये वजूद में है। अल्लाह जात में एक है, ये वजूद में है। खातम है एक। खातम चुना जाएगा 5 में से। उलुल आज़्म 5 है, खातम चुना जाएगा 5 में से। इतना बड़ा मजमा तशरीफ फरमा है। अब खातम के बाद जो जानशीन खातम होगा वो कहाँ से चुना जाएगा? अगर ये बात समझ आ रही है तो ठीक है। मेरा फार्मूला आप अपने जहन में रख ले, सभी बात समझ आ जाएगी। एक कहाँ से चुना जाएगा? 5 में से तो रसूल चुने गए। देखिए 5 में से तो हुजूर चुने गए ना, खातम उलुल आज़्म से चुना गया। ठीक हो गया। अब खातम है एक। शानी हो जाओ शानी। यही बात आपको जेल में हो गई। बहुत कुछ आपको आ गया, बहुत कुछ। खातम है एक। अब खातम के बाद जो चुना जाएगा वो नबियों में से 5 में से नहीं, उसमें रसूल चुने के बाद 313 में से नहीं, वो नबियों से चुने। नबियों में से नहीं, वो अवाम से चुने गए। अवाम में से तो चुना ही नहीं जाएगा। सारा निजाम जाके रसूल पाक पे पहुंचा। रसूल चुने गए 5 में से। रसूल के बाद जो चुना जाएगा, मैं जल्दी से ये जुमला कह दूं, वो चुना जाएगा जो रसूल में से होगा। नबूवत की जिंदगी है 23 साल। 13 साल मक्के की, 10 साल मदीने की। 13 साल रसूल रहे सहाबा किराम के दरमियान, 10 साल मदीने में रहे सहाबा किराम के दरमियान। 23 साल की जिंदगी है नबूवत की। 23 साल में कितने अच्छे काम किए हो सकते हैं। 23 साल में कोई छोटी हदीस दिखाए कि 23 साल में किसी साहबी ने ऐसा अच्छा काम किया हो। रसूल ने बुला के कहा हो, सुन तू मुझसे है, मैं रोज रसूल कहता है अली मुझसे है, हुसैन मुझसे है। आला इमरान वक्त के हवाले से सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। ये तो कहा गया 11 में मैं और बाजू तो कोई हार गया नहीं, तो मुझे मैं यही भी बात पूरा कर सकता हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा माशाल्लाह। इमरान 3 गुजरे हैं मेरे भाई। मैं कुरान से इमरान और आल इमरान कुरान से दिखाना। कुरान तो मान लोगे, तुम तो मान लो यार। 14 इमरान 3 है। पहला इमरान जनाब मूसा के बाप का नाम इमरान। इमरान की निशानी कुरान ने हमें ये बताई है। आले इमरान वो है जिसकी आगे औलाद दर औलाद दर औलाद दर औलाद कयामत तक चलेगी। अल्लाह ने आले इमरान वो चुना है जिसकी आगे औलाद दर औलाद चलेगी। ये 2-4 मिनट देख लो बस, मुकम्मल चलेगी औलाद। पहला इमरान है जो जनाब मूसा का बाप, मूसा बिन इमरान। जनाब इमरान
का बेटा है जनाब मूसा अलैहिस्सलाम। इस हवाले से बेटे के हवाले से आले इमरान जनाब मूसा है। आगे देखना है इनकी आगे औलाद हुई, औलाद दर औलाद चली या नहीं। अल्लाह ने 2 बेटे देकर मूसा अलैहिस्सलाम को 2 बेटे देकर शब्बर और शब्बीर, मालूम होता है ये नबियों से भी पहले नाम है। उनको जिंदगी है जनाबे, उनकी जिंदगी में वापस मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में दोनों बेटों को ले लिया। लेकर जुमला कहूँ ये दलील बन गया कि अल्लाह ने जनाबे मूसा की आले इमरान को खुद रोक कर बता दिया। आगे ये नस्ल चल नहीं रही, जिसको समझाने के लिए आले इमरान को बताने। जनाबे मूसा आले इमरान नहीं, इनकी औलाद आगे नहीं चली। आगे है जनाबे ईसा, मरियम के बाप का नाम इमरान। जनाबे ईसा नवासे हैं इमरान अलैहिस्सलाम के। जनाब ईसा एक हिसाब से आले इमरान हैं। नस्ल फिर भी नहीं चली, आज तक नहीं चली। ईसा अलैहिस्सलाम खालिक से नहीं बने, मरियम का शौहर नहीं था। कैसे बने हैं? अम्र से। ईसा अलैहिस्सलाम अम्र से बने, परेशान हो गया। अब अम्र समझना है मेरी कसूर है। ईसा अलैहिस्सलाम अम्र से बने हैं, अम्र से। इसी अम्र वाले को चौथे आसमान में बिठा के कहा ईसा अलैहिस्सलाम इंतजार कर मुंतजर का। आखिरी फर्द इमरान के आखिरी फर्द मेरा का बारवा है या नहीं? है या नहीं? इंतजार कर ईसा अलैहिस्सलाम से, इंतजार कर। क्या बनाया? अम्र से बनाया। एक लफ्ज़ कह दूं अच्छी, ताकि ये भी मेरी मजलिस में आपके तक पहुंच जाए कि जो बच्चा अम्र से बने, अम्र से जो बच्चा अम्र से बने उसकी माँ का बतूल होना वाजिब है। मरियम तेरा एक बेटा अम्र से बना, तू बतूल बन गई। सैयदा पाक के 11 बेटे इमाम। जनाब मरियम भी चली गई। देखे आगे कोई बच्चा नहीं, जो बच्चा है वो बैठा हुआ है अभी। मालूम है आले इमरान जनाब ईसा भी नहीं। आगे आ गया जनाब अबू तालिब, कुनियत है, नाम है इमरान। जल्दी होगा, कुरान से साबित। जनाब अबू तालिब कुनियत है जनाब की, नाम है इमरान, इमरान बिन अब्दुल मुत्तलिब। जनाब इमरान और जनाब अब्दुल्ला सरकार सही के वालिद गिरामी दोनों सगे भाई। ये नूर पेशानियों में चलता चलता जल्दी बस चलता चलता जनाब अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में जब इनका नूर आया, वहाँ एक था, यहाँ अब 2 हो गया। वालियों में नूरन वाहिद। एक हिस्सा जनाब अब्दुल्ला में चला गया, एक हिस्सा जनाब इमरान में चला गया। नूर का एक हिस्सा जनाब अब्दुल्ला में, एक हिस्सा जनाब इमरान में। अब इसी हिस्से तक दोनों जनाब इमरान भी जनाब अब्दुल्ला भी आले इब्राहिम, आले इब्राहिम। अब जनाब सरकार दो आलम से सैयदा पाक आई, बेखबर दुनिया सैयदा पाक। जैसे आगे नस्ल इमामत ने चलना है, तो जुमला कह दूं खुदा गवाह है, जिस पाक बीबी से नस्ल इमामत ने चलना है उस सदफ में कोई दूसरी बेटी आ ही नहीं रसूल की बेटी एक, 4 नहीं। बीबी पाक भी रसूल पाक के हवाले से आले इब्राहिम जनाब
इमरान से पहले कौन आया? अली अलैहिस्सलाम। अली अलैहिस्सलाम दो कमाल है, आले इब्राहिम भी, आले इमरान भी। आले इमरान के मरकज को अली कहते हैं। इधर सैयदा जनाब अली का आले इमरान की पहली मरकज होना दलील है कि रसूल की बेटी एक। सैयदा पाक का वक्त हो गया जनाब, हम आने से भी पहले, मतलब भी वैसे बाबा कहना नहीं चाहता, जिसके आने से पहले अली से निकाह हो जाए। दादा ने अली कहाँ थे? ठीक हो गया। अब सैयदा पाक का आते बाद जनाब अली से हुआ, बस खत्म करें क्योंकि वक्त के हवाले से ये सही ने 2 दफा का, मैं 1 दफा ही काफी हूँ का बस है। जनाब अली अलैहिस्सलाम शादी हो गई बीबी पाक की। अब जो जनाब हसनैन आए, अल्लाह ने कहा बीबी पाक तू आले इब्राहिम, अली तू आले इमरान और आले इब्राहिम। मैंने आले इब्राहिम और आले इमरान को मिला के अब जो हसनैन आए हैं, इमामत का नाम बदलता हूँ, सिर्फ नाम नहीं कमाल भी बदलता हूँ। अब अल्लाह ने इनका नाम रख दिया आले मोहम्मद। अब कयामत तक होगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले माशाल्लाह। जनाब अली मस्जिद कूफा में बैठे, साहबा भी बैठे हैं, ऊपर से परिंदे गुजरे। सरकार ने फरमाया अबान इब्न तगलब, इन परिंदों ने मुझे सलाम किया। न मानने वाले कहने लगे परिंदे सलामों के लिए नहीं, वो तो उड़ने के लिए है। जब उन्होंने कौले अली अलैहिस्सलाम पे एतराज किया, मेरे इमाम ने फरमाया कम्बल इन परिंदों को वापस बुला लो। परिंदे आए और जनाब अली के सामने सीधी कतार बना के बैठे। मैं कहूँगा भाई परिंदो परिंदो सीधी कतार बनाई है? हाँ बनाई है। अभी मैं कहता हूँ, मेरे अली ने फरमाया परिंदो इन मेरे बैठे हुए लोगों में कुछ लोगों ने ज़बान तौहीद पे शक किया। समझ आइए बाबा, ज़बान तौहीद पे शक किया। शक बताओ तुमने मुझे किन लफ्जों से सलाम किया? परिंदों ने कहा, हमने कहा मौला अस्सलाम अलैका या अमीर अल मोमिनीन। ठीक हो। इसी अली की बेटियां हलब से लेकर हुमस तक, अभी वही ये सारी बीबी का जिक्र भी है। अल्लाह अकबर। हलब से लेकर हुमस शहर है, 465 मील ऊँटों में बैठकर जनाब सकीना पानी मांगते हैं। मेरे ख्याल में बहुत बाद में मसाइब है, तो बेमानात शान में बहुत प्यासी बीबी फरमाते सकीना पानी नहीं। पहुंच गए हुमस, इन्होंने शामियाने लगा के, दुनिया को मैं सुना दूं, शामियाने लगा के ऊँटों को घोड़ों को शामियानों के नीचे बांधा और आले रसूल धूप में बिठा दिया। इस मलूम ने खुद पानी पिलाना शुरू किया। जब पिला रहा था जनाब सकीना ने कहा बोबी अम्मा मैं बहुत प्यासी हूँ, पानी मांग। मेरी बीबी ने कहा बाबा ने मांगा था हुज्जत तमाम के लिए, देगा नहीं मांग ले। बीबी ने कैसे लिख दिया कि मुफ्त लिखा है, लिखने वाले ने लिखा। बीबी ने आके कहा शिगर मैं बहुत प्यासी हूँ। कब से प्यासी हूँ? थोड़ा सा पानी दे दे। देखे जुमला कहूँ, बीबी सकीना ने कहा पहले पिला ले अगर बच जाए। ये खामोश हो गया, खामोश हो गया। पानी पिला के जब वापस आया ना, सकीना ने देखा पानी मशीजे में है, उठ के कहा शिगर पानी भी बच गया है, मैं भी प्यासी हूँ, थोड़ा सा पानी दे दे। इसे मशीजे का दहाना खोलो, खोल दे मशीजे। सकीना ने नीचे कासा रखा, उसने सारा पानी जमीन पे दिया। सकीना ने अपने आप को उसी पानी पे गिरा के कहा मुझे अब भी पानी नहीं मिला। अल्लाह जाने कब पानी आया सकीना से।